آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں نا جسے ہم سب نے سنا ہے، لیکن شاید اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کی۔ تو ہمارے پاس ظاہر ہے بنیادی ماخذ تو قرآن کی سورہ یوسف ہے، بالکل، لیکن ہم اس کے ساتھ کچھ کلاسیکی تفاسیر اور جدید نفسیاتی تجزیوں کو بھی دیکھیں گے، جی یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قدیم داستان آج بھی اتنی ریلیونٹ کیوں ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی کے واقعات کا ایک مجموعہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو انسانی جذبات کی پوری لیبارٹری ہے۔ ہاں حسد، محبت، طاقت کی خواہش اور پھر معافی۔ ہاں، ہر کردار، ہر واقعہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تقدیر اور تدبیر کے درمیان جو تعلق ہے نا، جی، اس کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا، ایک خواب۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی عام خواب تو تھا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فوراً اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور یہاں جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ والد کا مشورہ تھا کہ یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا، اور یہی مشورہ دیکھیں کہانی کے مرکزی نفسیاتی ٹکراؤ کی بنیاد رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ناطے صرف خواب کی تعبیر نہیں سمجھ رہے، وہ انسان کو سمجھ رہے ہیں۔ جی، وہ انسانی فطرت کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جہاں کوئی غیر معمولی نعمت ہوتی ہے نا، وہیں حسد کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر قریبی رشتوں میں۔ صحیح۔ تو ان کا مشورہ ایک حفاظتی تدبیر تھی، جو ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ہر نعمت کا اعلان ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حسد تو شاید پہلے سے ہی موجود تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھائی آپس میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے ابا یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ بالکل، تو یہاں صرف محبت کی کمی کا گلہ نہیں، بلکہ اپنی اہمیت کا، اپنی طاقت کا احساس بھی ہے۔ یہ حسد محبت اور طاقت کے تکون سے پیدا ہو رہا تھا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ حسد اکثر محبت کی غیر مساوی تقسیم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ بھائیوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی اجتماعی طاقت، ان کی وفاداری، اس کو ایک چھوٹے بھائی کی انفرادیت پر قربان کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ احساس کمتری اور ناانصافی کا وہ زہریلا مرکب ہے جسے شیطان نے استعمال کیا، اور ایک خاندان کو توڑنے کی پہلی کوشش۔ اور اسی نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر سازش شروع ہوئی۔ بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جی، پہلے تو قتل کی بات ہوئی، پھر ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ نہیں، اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس ایک بہانہ لے کر آتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیں۔ اور یہاں ایک اور بڑا دلچسپ نفسیاتی نقطہ سامنے آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا خوف ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ہاں، اب یہ ایک باپ کی فطری تشویش بھی ہو سکتی ہے، لیکن کئی مفسرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا شدید خوف ہی دوسروں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ بالکل دوسروں کو ہمارے خلاف راستہ دکھا دیتا ہے۔ بھائیوں کو اپنے جھوٹ کے لیے بہترین کہانی یہیں سے مل گئی۔ تو یہ محض اتفاق تھا یا اس میں کوئی گہری حکمت تھی؟ کیونکہ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ تو دل دہلا دینے والا ہے۔ بھائیوں کا رویہ راستے میں بدل جاتا ہے، اور وہ اپنے معصوم بھائی کو بے رحمی سے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کنویں کا اندھیرا، وہ اکیلا پن، اور اوپر سے بھائیوں کی سنگدلی کا شور۔ لیکن یہی کنواں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت گاہ کا پہلا مرحلہ تھا۔ یہیں پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی یا الہام ہوتا ہے۔ اچھا، تم ضرور ایک دن انہیں ان کے اس سلوک کے بارے میں بتاؤ گے، اور وہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ مستقبل کا ایک روڈ میپ تھا۔ واہ! یہ انہیں بتا رہا تھا کہ تمہاری کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ اندھیرے میں امید کی وہ پہلی کرن تھی۔ اور دوسری طرف بھائی بکری کے خون میں لتھڑی قمیض لے کر والد کے پاس پہنچتے ہیں، مگر حضرت یعقوب کا رد عمل وہ حیران کن ہے۔ وہ قمیض دیکھ کر ان کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں۔ جی، یہاں ایک بات سمجھنا مشکل ہے۔ حضرت یعقوب ایک نبی تھے، کیا انہیں وحی کے ذریعے سچائی کا علم نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ صرف قمیض دیکھ کر صبر جمیل کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے،
और इसमें दोनों पहलू शामिल हैं। एक नबी के तौर पर शायद वो जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और यूसुफ महफूज है, लेकिन एक बाप के तौर पर उनका दिल तो टूट गया था। उनका दिल टूट चुका था। उनका सब्र जमील इख्तियार करना महज खामोशी से दुख सहना नहीं था। ये एक नफ्सियाती हिकमत अमली है, जहां इंसान अपने इख्तियार से बाहर की सूरत हाल में बयानिए का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। मतलब वो ड्रामे का हिस्सा नहीं बनते। बिल्कुल, वो भाइयों के झूठे ड्रामे का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं और अपना मामला बराह रास्त अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। ये बेबसी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत पर यकीन का मुजाहिरा। अच्छा, तो कुएं से निकलकर वो मिस्र के एक ताकतवर घराने में पहुंचते हैं। जी, बज़ाहिर तो ये बेहतरी थी, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ और शायद ज्यादा मुश्किल इम्तिहान उनका मुंतज़िर था। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा का वाक़या। जी, अजीज़े मिस्र के घर का वाक़या किरदार की मजबूती का इम्तिहान था। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत अहम फैसला लेते। वो गुनाह पर कैद को तरजीह देते हुए दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, कैद मुझे उस काम से ज़्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है। बहुत बड़ा। ये जाहिर करता है कि वो अपने उसूलों पर समझौता करने को तैयार नहीं, चाहे कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न हो। वो जानते थे कि महल की आसाइशों में ज़मीर की कैद काटने से बेहतर है कि जिस्मानी तौर पर कैद रह के ज़मीर को आज़ाद रखा जाए। तो कैद खाना सिर्फ सज़ा नहीं था, वो एक तरह से एक यूनिवर्सिटी बन गया। ज़राए इस बारे में क्या बताते हैं कि उन्होंने इस तवील अरसे में खुद को कैसे तैयार किया? बिल्कुल, कैद खाने में वो सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वो वहाँ भी एक रहनुमा थे। अच्छा? उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताई, लेकिन ताबीर बताने से पहले उन्हें तौहीद की दावत दी। वो उनकी तरजीहात को जाहिर करता है। वो लोगों के ज़ाती मसाइल हल करने के साथ साथ उनके बड़े फिक्री और रूहानी मसाइल को भी हल करना चाहते थे। तो वो सिर्फ ताबीर नहीं बता रहे थे, वो किरदार साजी कर रहे थे। जी, और साथ ही अपने इल्म, हिकमत और इंतजामी सलाहियतों को निखार रहे थे। वो मिस्र के समाजी और माशी हालात का तज्जिया कर रहे थे, जो बाद में उनके बहुत काम आया। और फिर बादशाह का वो मशहूर ख्वाब आता है, 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, जिसकी ताबीर कोई नहीं बता पाता। तभी पुराने कैदी साकी को यूसुफ याद आते हैं। उन्हें बुलाया जाता है और वो न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताते हैं, बल्कि आने वाले कहत से निमटने का एक मुकम्मल माशी मंसूबा भी पेश करते हैं। और यही उनकी कायदाना सलाहियत खुलकर सामने आती है। वो सिर्फ मसला नहीं बताते, हल भी देते हैं। वो 7 साल की खुशहाली में गल्ला ज़ख़ीरा करने और फिर 7 साल के कहत में उसे दानिशमंदी से तकसीम करने का पूरा प्लान देते हैं। ये एक माहिर मुआशियात की निशानी है। और यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो मुझे हमेशा हैरान करता है। बादशाह उनकी रिहाई का हुक्म देता है, लेकिन वो बाहर आने से इनकार कर देते हैं। जी, वो कहते हैं कि पहले इस इल्जाम की तहकीक की जाए जो उन पर लगाया गया था। ये बज़ाहिर एक रिस्क था, लेकिन ये उनकी मुस्तक़बिल की क़यादत का पहला मुज़ाहिरा था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो ये बता रहे थे कि इंसाफ के बगैर इख्तियार बेमानी है। अगर वो एक माफ किया हुआ कैदी के तौर पर बाहर आते तो उनकी साख हमेशा दागदार रहती। सही। लेकिन जब उनकी बेगुनाही साबित होने के बाद वो बाहर आए तो वो एक साफ किरदार और इखलाकी बर्तरी के साथ आए। इसी वजह से बादशाह ने उन्हें तमाम खजानों का इख्तियार दे दिया। वो गुलाम के तौर पर मिस्र में दाखिल हुए थे। अब वो मिस्र के माशी निजात दहिंदा बनने वाले थे। फिर कहत का दौर शुरू होता है और भाई गल्ला लेने मिस्र आते हैं। वो अपने भाई को नहीं पहचानते जो अब मिस्र का हाकिम है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते हैं। उस लम्हे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? ये एक इंतहाई पेचीदा नफ्सियाती लम्हा है। एक तरफ पुराने जख्म, धोखे की याद, हाँ, और दूसरी तरफ इक़्तिदार और माफ करने की सलाहियत। लेकिन वो इंतकाम नहीं लेते, बल्कि एक हिकमत अमली बनाते हैं। वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र बुलवाने का मंसूबा बनाते हैं ताकि खानदान को दोबारा जोड़ा जा सके। वो सिर्फ बदला नहीं ले रहे, वो खानदान को जोड़ रहे हैं। जी, वो एक बिखरे हुए खानदान को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी मंसूबे के दौरान भाइयों की तब्दीली भी नजर आती है। जो भाई कभी एक भाई को कुएं में फेंकते हुए नहीं हिचकिचाए थे, वही अब बुन्यामीन के लिए बादशाह के सामने गड़गड़ा रहे हैं। बिल्कुल, उनका ये कहना कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं
आप हम में से किसी एक को उसकी जगह रख लें, ये जाहिर करता है कि वो अब जिम्मेदारी का एहसास करने लगे थे। यूसुफ यही देखना चाहते थे कि क्या वो बदल गए हैं या नहीं। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया, तब उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर की। आखिरकार वो लम्हा आता है। भाई शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े हैं और सबको लग रहा है कि अब इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन हजरत यूसुफ का जवाब, वो इंसानी तारीख के अजीम तरीन जुमलों में से एक है, थोड़ा तवक्कुफ, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। इस एक जुमले ने माजी के तमाम जख्मों को भर दिया। ये सिर्फ माफी का ऐलान नहीं था, ये इल्जाम और शर्मिंदगी के बोझ से उनकी रूह को आजाद करना था। नफ्सियात में हम इसे रेडिकल फॉरगिवनेस कहते हैं, जहां आप न सिर्फ दूसरे को माफ करते हैं बल्कि उस वाक़े से जुड़ी तमाम मनफी तमन्नाई को खत्म कर देते हैं। ये इंतकाम से कहीं ज्यादा ताकतवर अमल था और उसने एक टूटी हुई फैमिली को दोबारा जोड़ दिया, एक कौम की बुनियाद रख दी। उसके बाद सब कुछ तेजी से बदलता है। यूसुफ की कमीज की नान पहुंचती है, वालिद की बेनाई लौट आती है, पूरा खानदान मिस्र में इकट्ठा होता है और फिर वो मंजर सामने आता है जिसकी खबर ख्वाब में दी गई थी। जी, वालिदैन और 11 भाई उनके सामने झुक जाते हैं और यूं वो ख्वाब अपनी मुकम्मल ताबीर को पहुंचता है। जी, और यहाँ ये वाज़ेह करना जरूरी है कि ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और मकाम को तस्लीम करने का था, जैसा कि उस ज़माने का दस्तूर था। अच्छा, ये इस बात का एतराफ़ था कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मकाम अता किया है वो सब उसे तस्लीम करते हैं। तो इस गहरे जायजे का खुलासा ये है कि हसद जैसे मनफी जज्बे ने एक खानदान को तोड़ा, लेकिन सब्र, हिकमत और माफी जैसे मुस्बत रवैयों ने उसे दोबारा जोड़ दिया। ये कहानी बताती है कि आजमाइशें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आती हैं। जी, बल्कि उसकी सलाहियतों को निखारने और उसे बड़े किरदार के लिए तैयार करने के लिए आती है। कुएं का अंधेरा, जुलेखा का इल्जाम, कैद की तन्हाई, ये सब उस सफर की ट्रेनिंग का हिस्सा है। और सामीन के लिए एक आखिरी सोच छोड़े जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी ये सवाल उठाती है कि तकदीर और इंसान के अपने फैसले के दरमियान क्या ताल्लुक है। इस कहानी में दोनों चीजें एक साथ चलती नजर आ रही हैं। ख्वाब एक तयशुदा तकदीर का इशारा था, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भाइयों के हसद, जुलेखा की ख्वाहिश और खुद यूसुफ के सब्र और फैसलों से बना। सही। हर मोड़ पर उनके पास दो रास्ते थे, एक आसान और गलत, दूसरा मुश्किल और सही। उन्होंने हर बार मुश्किल रास्ता चुना। तो सोचने की बात यह है कि हमारी जिंदगियों में तकदीर के वादे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे इखलाकी फैसलों के कितने मोहताज होते हैं।